Good evening, everyone. In the last class, which has been happened last time, very long time back, before the Holi break. So there we have been studying regarding the various type of symbols that has been used for the electrical wiring. So using those symbols, you can draw the various type of winding into the system. So today we are going to start a new topic, and this new topic is about the industrial wiring. What is the different type of electrical wiring that we use into the various system, or whether it is a domestic, whether it is a industrial, and what type of wiring we generally do into the uh, home or other places. So let's start with this. So the first thing that we're going to see is what is electrical wiring system. The first thing that we have to understand. So the first thing is what is electrical wiring system, or how we can say that how you define this wiring. So electrical wiring generally refer to the installed conductor used to carry the current and associate devices. So domestic electrical applications such as light, fan, washing machine, water pump, etc. are connected to the supply through insulated wire which are controlled by the switches. So the wiring diagram give the connection of the different application to the supply within a house or the building. So how we can define any wiring system? So the wiring system is basically a type of system where we are going to connect different electrical wire into some systematic way. हम लोग वायर को कैसे कनेक्ट करेंगे, इन सिस्टमेटिक वे को कनेक्ट करेंगे so that this can be connected, and और क्या हम लोग का मेन पर्पज है to give the supply to all the things, means whatever the equipments we have in our home, all these equipments should get some supply, and this supply will be connected through the some wires, and these wires, the various type of wires and its diagram is known as a wiring, electrical wiring system. So this is the main important thing. So, state electricity board provide electricity supply up to the point outside the consumer premises. From this point, consumer take the connection to his main board, install electrical wire, will take out the various place into the premises to supply power to the different type of load, like loads, fan, refrigerator, room, कूलर, हीटर एंड ऑल those थिंग्स. सो कहने का मतलब क्या है कि हमारा जो सप्लाई आता है वो कहाँ तक आता है, इट्स कम अप टू द डोर ऑफ द आवर होम. हम लोग के होम तक ही इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड हम लोग को सप्लाई देती है. उसके बाद वहाँ से मेन बोर्ड तक सप्लाई लाना, और मेन बोर्ड के सप्लाई लाने के बाद फिर उसको अपने घर में जो भी चीज़ें हैं, फ्रिज है, कूलर है, एसी है, जो भी चीज़ें हैं उनको जो सप्लाई देने के लिए हम लोग वायर को इधर से उधर रोटेट करते हैं, जो भी करते हैं उसके जरिए हम लोग उसको क्या बोलते हैं, सिस्टम्स ऑफ द वायर. ये वायर का वेरियस जो सिस्टम होता है उसको बोलते हैं सिस्टम्स ऑफ द वायरिंग. वायर्स का सम स्पेसिफिकेशंस होना चाहिए कि किसी भी वायर को हम लोग यूज नहीं कर सकते सिस्टम में. क्यों यूज नहीं कर सकते?
So if you're going to use any wire, any type of wire into the system, so उसके होगा क्या कि उसका किस टाइप का इंसुलेशन है। फर्स्ट थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, किस मटेरियल का वो बना हुआ है। तो क्यों मटेरियल हम लोग बेसिकली यूज करते हैं, किस टाइप का मटेरियल यूज करना है, दैट विल बी जो विच इज अ गुड कंडक्टर। तो गुड कंडक्टर क्या है, इधर कॉपर और एल्युमिनियम, इन्हीं दोनों कंडक्टरों का हम लोग को यूज करके वायर बना होना चाहिए। उसका इंसुलेशन अच्छा होना चाहिए, क्योंकि यदि इंसुलेशन नहीं होगा तो क्या होगा, there is a chance of the short circuit, or there is a chance of the electrocuting any man or woman or any other animal। तो यदि अच्छे से उसका इंसुलेशन नहीं हुआ होगा तो क्या हो जाएगा, किसी को भी बिजली के शॉक्स लग सकते हैं। तो दीज आर द फ्यू स्पेसिफिकेशन दैट आवर वायर शुड हैपन। तो पहला क्या है, द कंडक्टर मटेरियल इन इंसुलेशन साइज एंड नंबर ऑफ द कोर स्पेसिफाई द इलेक्ट्रिक वायर। तो ये सब चीजें इलेक्ट्रिक वायर को स्पेसिफाई करती है। सो कंडक्टर, द कंडक्टर आर यूजली आइदर कॉपर और एल्युमिनियम। तो जो वायर बना रहता है किसका रहता है, या तो कॉपर का रहेगा या एल्युमिनियम का रहेगा। क्यों इन दोनों मटेरियल को हम लोग यूज करते हैं, बिकॉज दे आर द वेरी गुड कंडक्टर ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी, कि इसमें से इलेक्ट्रिसिटी आसानी से पार हो जाती है। वेरियंस इंसुलेटिंग मटेरियल लाइक पीवीसी, टीआरएस एंड वेयर यूज, और उसके ऊपर हम लोग को एक अच्छा इंसुलेटिंग मटेरियल को लगाना पड़ता है। द वायर शुड बी में the wire with a combination of different diameter and the number of core or standard are available। जैसा हमको जरूरत है वैसा हमको वायर अवेलेबल है। So the selection of the wire is made depending upon the requirement, considering factor like current and voltage rating, cost and application। तो कौन सा वायर यूज करना है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, इट विल बी सोली डिपेंड अपॉन द वेयर यू वांट टू यूज दैट वायर, हमें इस वायर को कहाँ पे यूज करना है। सो सपोज इफ यू यूजिंग दिस वायर फॉर द मेन सप्लाई, तो उस समय क्या होना चाहिए, दिस वायर शुड हैव अ बेटर करंट एंड, तो उसकी जो कैपेसिटी होनी चाहिए, करंट कैरिंग कैपेसिटी होनी चाहिए, क्या होना चाहिए, शुड बी मोर। यदि ज्यादा नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, इट विल बी बर्न आउट, या उसका इंसुलेशन खराब हो जाएगा। तो व्हाट इज द फर्स्ट रिक्वायरमेंट, आवर वेरी फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज इट्स अ कैसा इसका करंट रेटिंग एंड वोल्टेज रेटिंग है, कहाँ पे इसको हमको यूज करना है। तो यदि हमको एसी के लिए लगाना है तो दैट विल बी डिफरेंट वायर, और यदि हमको फैन के लिए लगाना है, लाइट के लिए लगाना है, तो देन इट विल बी डिफरेंट वायर। द करंट कैरिंग कैपेसिटी डिपेंड अपॉन द टोटल एरिया ऑफ द वायर। तो वायर का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है वो डिफाइन करता है कि उसकी करंट कैरिंग कैपेसिटी कितनी होगी। तो उसका मतलब क्या है कि जो पतला तार होता है उसकी करंट कैरिंग कैपेसिटी कम होती है, और जो मोटा तार होगा उसकी जो करंट कैरिंग कैपेसिटी है वो ज्यादा होगी। सो व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द वायरिंग। So wires are drawn along the consumer building to distribute power to all point where load is situated। So वायरिंग क्या हो गया, वायर को हम लोग एक जगह से दूसरे जगह लेके जाते हैं along द कंज्यूमर बिल्डिंग, जो भी हमारे घर है या कंज्यूमर का जो भी बिल्डिंग है, जो भी परमाइसेस है, उसमें क्या करना है, हमको हर जगह वायर को घुमाना है। ऑल पॉइंट वेयर लोड इज सिचुएटेड, जहां जहां हमको लोड है वहां वहां क्या करना है हमको, वी नीड टू गिव द सप्लाई। दिस इज द वर्क ऑफ एनी वायरिंग ऑफ द सिस्टम। तो टाइप ऑफ द वायरिंग अकॉर्डिंग टू यूज क्या हो सकता है, कि यूज के हिसाब से वायरिंग कितने टाइप हो सकती है। तो पहला क्या है, डोमेस्टिक है, दूसरा क्या है, इंडस्ट्रियल है, तीसरा क्या है, कमर्शियल है।
तो डोमेस्टिक वायरिंग का मतलब क्या हुआ कि दैट वायरिंग विच इज डन इनटू द होम एलोन, जो होम में किया जाएगा वायरिंग, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? डोमेस्टिक वायरिंग। क्या बोलेंगे उसको? द वायरिंग विच वी विल डू डन इनटू द होम, इट विल बी नोन एज ए डोमेस्टिक वायरिंग। तो जिस वायरिंग को हम लोग घर में करते हैं उसको क्या बोलते हैं? दिस इज नोन एज ए डोमेस्टिक वायरिंग। ऐसा वायरिंग जो कमर्शियल पर्पजेस के लिए यूज हो, तो कमर्शियल पर्पजेस का मतलब क्या हुआ? कमर्शियल बिल्डिंग, बहुत सारे कमर्शियल बिल्डिंग होते हैं। सो जैसे क्या हो सकता है? लाइक स्कूल, कॉलेजेस, और कहाँ पे यूज कर सकते हैं? मॉल्स। सो ऑल दीज प्लेसेस इज नोन एज ए कमर्शियल प्लेसेस। तो ऐसे कमर्शियल प्लेसेस पे जो वायरिंग करते हैं हम लोग, उसको क्या बोलते हैं? दिस विल बी नोन एज ए कमर्शियल वायरिंग। तो कमर्शियल वायरिंग हम लोग कहाँ करते हैं? जहाँ पे कमर्शियल थिंग्स आर डन, मीन्स जहाँ पे व्यापार की चीजें की जाती हैं, ऐसे जगह पे जो वायरिंग की जाती है, दिस इज नोन एज ए commercial wiring. So the requirement of the commercial wiring will be different, and the requirement of domestic wiring will be different. So commercial wiring, suppose you are doing and wiring for the any shop. So if you're doing this wiring into any shop, तो उसका क्या मतलब है? It will be done according to its requirement. उसको अलग तरीके का फैन चाहिए, अलग तरीके का सॉकेट चाहिए। इट रिक्वायर्ड मोर नंबर ऑफ सॉकेट at different places. Suppose if you're doing any wiring for the offices or bank, जहाँ पे बहुत सारे कंप्यूटर चलाने हैं, so their wiring will be entirely different from the domestic wiring. And the third type of wiring is the industrial wiring. So what do you mean by industrial wiring? Is that the wiring which will be done in the industry? कहाँ पे? ऐसे जगह पे जहाँ पे इंडस्ट्री में वायरिंग करना है, उस जगह जो वायरिंग करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंडस्ट्रियल वायरिंग। सो द रिक्वायरमेंट ऑफ द वायरिंग विल बी डिफरेंट इनटू द इंडस्ट्री. So suppose heavy loads is there, heavy machines are there. So their current rating and voltage rating, so type of wire we use there, all these things will be different, and the requirement we need to fulfill the requirement. What is the requirement of that particular industry? Those things need to be get fulfilled by our wiring. So point to be considered while selecting any system of the wiring. So क्या क्या पॉइंट्स हमको कंसिडर करने चाहिए जब हम लोग किसी सिस्टम के वायरिंग को यूज करने जा रहे हैं, या किसी वायरिंग सिस्टम को हम लोग सेलेक्ट कर रहे हैं? तो फर्स्ट थिंग इज लाइफ ऑफ द इंस्टॉलेशन, कि कितने साल के लिए हम लोग इस वायरिंग को कर रहे हैं? 10 साल, 50 साल, कितने साल के लिए हम लोग ये वायरिंग को कर रहे हैं? डेट्स द मेन इंपॉर्टेंट थिंग, कि उस वायरिंग की लाइफ कितनी होनी चाहिए। दैट इज अवर फर्स्ट प्राइमरी रिक्वायरमेंट। फ्यूचर एक्सटेंशन और अल्टरेशन। तो फ्यूचर एक्सटेंशन क्या हो गया? कि सपोज we are going to use this, or we require more amount of suppose in any home, his home get bigger, or he has constructed more houses, or his requirement is increased by some day, तो उसमें क्या हो गया? उसका फ्यूचर एक्सटेंशन हो गया। सो जब फ्यूचर एक्सटेंशन हो गया तो उस केस में क्या करेंगे? वी हैव टू एक्सटेंड दैट वायरिंग एज वेल, दिस फ्रॉम दिस प्लेस टू दैट प्लेस। तो कैसे it need our system should be in such a way that we can easily extend that wiring, या फिर उसकी रेटिंग जो है that need to be get
means our wires rating should not be, this is the main supply wire है, that should not be affected. So if you're doing any future extension, so main supply wire should not be get affected. Then we have a construction of the building, कि building का construction कैसा है, if it is a good construction or what type of construction we are holding with that. Then we have a corrosive fumes, कि क्या उसमें कोई जंग तो नहीं लगेगी. दिस थिंग्स वी नीड टू अंडरस्टैंड कि क्या हम लोग के जो आसपास की चीजें हैं उसमें कोई जंग लगेगी या नहीं लगेगी. देन वी हैव ए डैम्पनेस, कि कहाँ पे इसको हम लोग को डैम्प करना है, बट कहाँ पे किस जमीन में इसको सॉरी किस दीवार में इसको हम लोग को डैम्प करना है, किस दीवार में हमको छेद करना है, उसको ध्यान रखना होगा. टाइप ऑफ वायर एंड मटेरियल यूज, किस टाइप के वायर को हम लोग यूज कर रहे हैं. सो वेदर इट इज एल्युमिनियम वायर और कॉपर वायर. नेचर ऑफ द लोड, सो नेचर ऑफ द लोड क्या हो गया कि व्हाट टाइप ऑफ लोड वी आर कनेक्टेड टू द सिस्टम. सो टाइप ऑफ द लोड क्या हो गया, वेदर वी आर कनेक्टिंग इट फॉर द लाइट फैन or it is connecting for the what you can say for AC. So different type of load will have a different type of application. So based upon that only we have to choose our wirings. Then we have a safety of the system and then cost of the wiring. तो इतना पॉइंट को बिफोर सेलेक्टिंग एनी वायरिंग सिस्टम वी हैव टू अंडरस्टैंड और वी हैव टू just make sure that these parameters are fulfilled in our system. Now what are the factors that will be going to affect the choice of the wiring, कि जो हम लोग वायरिंग कर रहे हैं उसको चूज करने के लिए क्या क्या फैक्टर्स अफेक्ट कर सकते हैं, कि हम लोग कौन सा वायरिंग सिस्टम इंस्टॉल करना है उसको कैसे हम लोग निर्धारित करेंगे. तो फर्स्ट थिंग इज ड्यूरेबिलिटी. ड्यूरेबिलिटी क्या होता है, टाइप ऑफ द वायरिंग सेलेक्टेड शुड conform to stand specification so that it is durable, that is without being affected by the weather condition, fumes, etc. सो हमारा जो वायरिंग सिस्टम है वो कैसा होना चाहिए, ड्यूरेबल होना चाहिए. ड्यूरेबल का मतलब क्या है, सपोज इफ यू आर डूइंग एनी वायरिंग it should not be affected by the weather condition. So whether it is a summer or it is a raining season or it is a winter season, it should not affected this your wiring should not be get affected by the this weather. First, this is the first thing. All of us know that as the rain started, storm started, so what will generally happen, our electricity supplies get disconnected. But if it is any underground wiring is there, then in that case what is happened, there is no effect on wiring or there is no effect on supply due to the rainy season. तो रेनिंग सीजन हो रहा है तो उस केस में क्या है कि हमारे सप्लाई के ऊपर कोई ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता. तो दिस इज नोन एज ए ड्यूरेबिलिटी ऑफ द वायरिंग सिस्टम, कि हमारा सिस्टम कैसा होना चाहिए, इसके ऊपर वेदर का कोई प्रभाव नहीं पड़े. नेक्स्ट वन इज सेफ्टी. So there should be good amount of safety to our wiring. तो हमारा वायरिंग कैसा होना चाहिए, इट शुड बी सेफ फ्रॉम द अदर थिंग्स. जैसे कि घर में कोई उसके वजह से कोई आग ना लगे, कुछ प्रॉब्लम ना हो, हमारे एप्लीकेशंस शुड बी सेफ. ये सब चीज़ें हमको ध्यान में रखनी चाहिए कि वायरिंग शुड प्रोवाइड सेफ्टी अगेंस्ट द लीकेजेस, शॉक्स एंड फायर हैजार्ड्स फॉर द ऑपरेटिंग पैनल्स, कि हमारे जो ऑपरेटिंग पैनल्स हैं उसमें क्या होना चाहिए, कोई किसी प्रकार का करंट नहीं लगना चाहिए. ठीक है ना.
शॉक नहीं लगना चाहिए, फायर हैजार्ड्स नहीं होना चाहिए कि वो जल रहा है। यदि हम लोग खराब मटेरियल यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, सिस्टम जल जाएगा। या हम लोग कम रेटिंग के मटेरियल्स को यूज करेंगे और हैवी लोड, तो उस केस में भी क्या हो जाएगा, और सिस्टम विल बी गेट बर्न। Then appearance, electrical wiring should give an aesthetic appeal to the interior. तो कैसा लगना चाहिए हमारा वायरिंग टू द इंटीरियर, मतलब हम लोग यदि अपने घरों में वायरिंग को करवा रहे हैं तो ये कैसा लगना चाहिए, खूबसूरत लगना चाहिए। ऐसा नहीं कि कहीं से तार निकाल दिए, कुछ भी कर दिए, इधर तार लटका हुआ है या फिर तार इधर से उधर जा रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इट शुड बी लुक गुड, अच्छे दिखना चाहिए। यदि अच्छा दिखेगा तो इसका क्या इफेक्ट होगा कि इफ एनीबडी कम टू योर हाउस देन यू विल अप्रिशिएट इट कि कितना अच्छा वायरिंग है, दैट वी कैन नॉट एबल टू फाइंड एनी थिंग्स रॉन्ग, और all the wires are connected properly, all the applications are connected properly, and you are giving means you are turning on the switch and applications are working properly and it is convenient to your place। मतलब क्या है कि जहाँ पे हमको ज़रूरत है वहाँ पे हम लोग इसको लगाए पड़े हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ लाइटनिंग इज देयर nowadays, some fashionable lighting is coming into the system, so all these things should be there। When it come to the cost, it should not be prohibitively expensive, means हमारा जो वायरिंग है वो क्या होना चाहिए, इट शुड नॉट बी वेरी एक्सपेंसिव। इसका कॉस्ट क्या होना चाहिए, इट शुड बी वेरी इफेक्टिव। कॉस्ट हमारा क्या होना चाहिए, इट शुड बी वेरी इफेक्टिव। Then है accessibility, then the switches and plug point provided should be easily accessible. There must be provided for the further extension of the wiring system if necessary। सो एक्सेसिबिलिटी क्या होता है कि हमको जहाँ पे प्लग और जो सॉकेट हम लोग लगाए हैं डेट नीड टू बी वेरी इफेक्टिव, यार डेट नीड टू बी वेरी in a such a way that we can easily access it। Means suppose nowadays we whenever you go, you will see that wiring system is such that you have socket uh, beside your beds। क्यों ऐसा दे रहे हैं, बिकॉज द फ्यूचर नीड्स इज लाइक दैट you you have lots of application appliance like mobile is there, laptop is there, so every person want to sit on its bed and want to work for its comfort। तो उसके लिए क्या होना चाहिए, you should have sockets beside your beds। Similarly you should have socket in various places where जहाँ पे हमको टीवी लगाना है, जहाँ पे हमको nowadays Wi-Fi is there, so it should be get supply at its location। So these are the way where you it can be access easily, जहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको आसानी से एक्सेस कर सकें। देन मेंटेनेंस कॉस्ट, तो हमारा जो मेंटेनेंस कॉस्ट है वो क्या होना चाहिए, शुड बी वेरी चीप या वेरी लेस। इसमें कोई मेंटेनेंस कॉस्ट नहीं आना चाहिए कि हमारा तार खराब हो गया इसको बदलना है, या सॉकेट खराब हो गया इसको बदलना चाहिए। ऐसे वायरिंग हमको नहीं करना है। हमको वायरिंग कैसे करना है, ऐसे करना है कि एक बार पैसा लग गया है उसके बाद आवर सिस्टम विल बी रिमेन्स मेंटेनेंस फ्री। देन मैकेनिकल सेफ्टी इज देयर, सो किसी प्रकार कोई मैकेनिकल डैमेज नहीं होना चाहिए कि कोई भी आ रहा है उसको डैमेज कर दे रहा है। मैकेनिकल डैमेज मीन्स सपोज somebody is doing something with hammers or all those things, so उससे क्या होना चाहिए, इसमें हमारे सिस्टम को मैकेनिकल सेफ्टी होना चाहिए। सो व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ वायरिंग। सो वायरिंग क्या है, दीज आर द फॉलोइंग टाइप ऑफ वायरिंग दैट वी डू। सो द फर्स्ट वन इज क्लीट वायरिंग,
Second one is wood costing wiring. The third one is CTC wiring are the TRS wiring are the beating wiring. Then we have a conduct wiring, and the fifth one is metal sheet wiring are the lead setter wiring. So these are the different type of wiring that we do into our system. हमारे सिस्टम में जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के वायरिंग है वो इस टाइप के वायरिंग होते हैं. पहला क्या है हमारा क्लीट वायरिंग. दूसरा क्या है वुड कास्टिंग वायरिंग, वुड कास्टेड वायरिंग. Then we have a CTS wiring are the TRS wiring are the beaten wiring. First one is conduct wiring. Fourth one is metal setted wiring are the lead setted wiring. So these are the various type of wiring. सभी वायरिंग कैसे हैं कि on which basis we are going to do the wiring. पहला वर्ड टाइप हम लोग किस पे पढ़े बेस अपॉन द यूजेस कि उस सिस्टम को यूज कहाँ करने वाले हैं तो उसके आधार पर हम लोग क्या पढ़ लिए whether it is a commercial wiring or industrial wiring or the domestic wiring. ये तीन टाइप के हो गए. नेक्स्ट वी आर गोइंग फॉर द किस टाइप का हम लोग वायरिंग करने जा रहे हैं. किस टाइप का मतलब क्या हो गया कि कौन कौन सा मटेरियल यूज करेंगे, किस मटेरियल को कहाँ पे यूज करेंगे, कैसे हम लोग उसको यूज करेंगे. डिपेंडिंग अपॉन दैट दिस आर द वेरियस टाइप ऑफ वायरिंग. किसके ऊपर अब ये डिपेंड करेंगे कि व्हाट आर द मटेरियल, व्हाट आर द डिजाइन फॉर इट वी आर गोइंग टू यूज. So based upon that we can classify our wiring into the five types. These are the cleat wiring, wood casting wiring, CTS wiring, conduct wiring, and metal sheet wiring. So the very first wiring for us is cleat wiring. हमारे लिए सबसे पहला wiring क्या है cleat wiring. So in this type of the wiring wood or plastic cleat are fixed wall or the selling at regular interval, usually 0.5 mm between the each cleat. PVC insulated cable are then taken through the hole of the each cleat. Cleat support and hold wire. This is a cheap method. It is used for the temporary installation. It is not suitable for the home. It is outdated method. So cleat wiring क्या होता है? ऐसा वायरिंग है इट इज यू कैन स्टिल फाइंड इट आउट इनटू द ओल्ड होम्स. ओल्ड होम्स में यदि आप जाएंगे you can easily find out this wiring. So here you can see the third diagram where you can see uh, this is a cleat wiring. cleat wiring में क्या होता है कि हम लोग तार को होल्ड कौन करता है हमारा क्लीट. सो ये जो वायरिंग है जो आपको दिख रही है ये क्या है दिस इज नोन एज ए क्लीट वायरिंग. अब इफ यू सी दिस क्लीट वायरिंग सो यू कैन सी दैट दिस इज एन क्लीट. ये हमारा क्या है इसको so this system use insulated cable sub protected in the proclaim teeth. ठीक है ना. So suppose this is our teeth is there, cleat is there, या इसको बोलेंगे कि हम लोग का एक क्लीट है, इसके बीच में से एक वायर को गुजार देंगे. तो इफ यू सी दिस क्लीट सो इफ यू सी दिस क्लीट सो यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि इस चीज के बीच में से बहुत सारे वायर आपस में जा रहे हैं. तो ये जो वायर्स जा रहे हैं इसको कौन होल्ड कर रहा है दिस क्लीट इज होल्डिंग टू दिस वायर. इस वायर को ये कौन होल्ड कर रहा है it is getting hold by the
these cleats. तो इन क्लिप्स के बीच में से हमारे ये वायर्स जाते हैं और इन्हीं को हम लोग क्या बोल देते हैं, दे आर नोन एज ए क्लिप, दे आर नोन एज ए क्लिप, ये हमारे वायर हैं. सो डायरेक्टली वायर विल गो थ्रू द होल्स ऑफ दिस क्लिप. यहाँ पे आप लोग देखिए होल्स बने हुए हैं, इस होल्स के बीच में से एक एक क्लिप जाएगा और इट विल बी इंस्टॉल्ड लाइक दिस. So this is a very old fashion. Nowadays, some cloth is coming like a you can see plastic uh, cloth are still coming. जहाँ पे हमको ये टेम्परेरी व्यवस्था चाहिए, ऐसा व्यवस्था जो which can be removed after some times. जैसे बहुत सारे होम्स में रहते हैं जहाँ पे हमको अभी टेम्परेरी व्यवस्था चाहिए, बट आफ्टर सम टाइम we will do the permanent solution. So before that we require some temporary arrangement. तो वो temporary arrangement कैसे कर सकते हैं using the clips. तो clips में क्या रहेगा, this will arrange the wire into the systematic manner. कि हमारे वायर को क्या करेगा, सिस्टमेटिक मैनर में अरेंज करेगा और देन we can use this. So this is known as a clipped wiring. Nowadays, this type of method are getting old. अब ये वायरिंग को कोई कराता नहीं है. क्यों नहीं कराता है? बिकॉज दिस इज अ वेरी ओल्ड मेथड. ओल्ड मेथड होने की वजह से nowadays very fashionable things are coming. Now we prefer more underwall wiring, but earlier day we used to use this clipped wiring. If you go in old homes, you can still find out this type of wiring in in those homes. So next type of wiring is CTS wiring or the TRS wiring or the beating wiring. So this type of wiring is also used for the house bonding and is quite cheap. So cap tire seated wire or tough rubber seated TRS wire is normally used as a conductor in for this wiring. So you can see the different layers of the this conductor. So the first one is if you see this cable. So पहला क्या है हमारा? This is your conductor. Then next one is rubber installation. You can see the first layer which will be installed upon the this conductor is known as a rubber insulation. Then we have a rubber sheet, and the fourth one is ब्रांड. इतने लेयर का हमारा क्या है, इंसुलेशन है ऑन दिस टाइप ऑफ वायर. So this type of wire is very cheap, and then we can have the cap type CTC wire. So wire are run on the teak wooden button which can fix on the wall or by the selling by the means of the screw and wooden plug. Then CTS are the TRS cable. Use are not much affected by the chemical water and steel. तो हमारे घरों में अभी भी आप यू कैन सी दैट इन ओल्ड होम्स दिस टाइप ऑफ वायरिंग इज स्टिल प्रेजेंट. और उसका सबसे बड़ा कारण क्या है? दिस इज अ वेरी चीप एंड इट कैन बी डन इनटू द easier way. So what is the advantage of this type of cable? So the major advantage is that this cannot be affected by the weather, steam, chemical. So they cannot be get affected by any of these things. So this is the most important uh,
of this wiring. Next is wood casing wiring. So in this cable is run through a wood casing having the grooves. Then we have the wood casing is performed. So wood casing is a required fixed length with the parallel gloves that accommodate the cable. The wooden casting is fixed to the wall and sealing with the screw. So if you see this type of thing is here. You can see this is the diagram for the wooden casing or the capping. So what is basically here happening here is that we have a this wooden case. Inside this wooden case, we will have the this supply wires, and these supply wires will be controlled from the switches and the they will be then given to the our required equipments. So here you can see that this is the only a wooden case is there. Based upon the wooden case, we are connecting some wire in this. So all the wire will be hidden inside this वुडन केस. तो हमारा एक तरीके से क्या है, लकड़ी का संदूक है और उसके पीछे क्या रहेंगे, सारे तार लपेटे रहेंगे. सो फॉर टुडे आई एम स्टॉपिंग हियर. विल कंटिन्यू दिस discussion tomorrow. So let me take your attendance and then. So those who are present today are Abhijit Banerjee, Abhishek Singh Bhadoria, Adan Nasir Sami, uh, Amarjit Roy, Ashok Kumar Kewat. Then we have Meheruddin Ansari, Najis Ahmed, Neeraj Pravan Kumar Khare, Rahul Pachori, Shailesh Kumar, Shaktiman Kumar, Shivshankar Kumar, Subhani Sheikh. So इतने लोग present है today. Anyone else? Okay, so thank you everybody. We're going to meet tomorrow. There we'll discuss these things further. So good night, all of you.